Very nice. Hurry up. Keep your cameras on. And by the time I'm admitting everyone, just spend 5 minutes. Find out these 5 words: valor, courage, heroism, bold, daring, in the grid that is given before you in your books on page number 59. Arush, let's start, beta. What are you waiting for? Pencil? Okay, start. Hurry up. Waiting for pencil, Arush? Yes. Chalo, start. Hurry up. Don't take much time. Find out the words and highlight them. I'm sorry, you must be waiting for long. There was a little problem. Okay. Okay, very nice. Quickly, Arush. नहीं समझ आया? दोबारा देखो. You have to fill this grade. ये जो 5 शब्द दिए हुए हैं उसमें से एक तो हाईलाइट किया हुआ है, बाकी आपको हाईलाइट करने हैं. फटाफट करो. The 5 words are given, right, in your book on page number 59. I'll just share the screen. Those who do not have the book, they can just find. Yes, very good, Kanika. I can see that you have done. Very nice. I'll just show you. Okay. So this I'm talking about. Okay. So you just need to highlight the words. So like valor is already highlighted. You have to find where is courage written. Raise your hand if you could guide me. Where is courage? किसने ढूंढ लिया? ओके आरुष, आप बताइए बेटा. हाँ, कौन सी लाइन में जाऊं? फर्स्ट में, सेकंड में, कहाँ आऊं? यहाँ पे है? मैम सेकंड. यहाँ? Shall I go horizontal or vertical? यस मैम. Horizontal or vertical? मैम हॉरिजॉन्टल. अच्छा, horizontal तो ये हो गया. यहाँ तो courage नहीं है. मैम वर्टिकल सॉरी. ओके, सो horizontal and vertical का मतलब समझ आया? Horizontal मतलब यस मैम. sleeping line and vertical मतलब standing line. So yes, here is courage. Very right. Okay. Now who will tell me the next word? और आरुष म्यूट कर दिया मैंने आपको. अब कौन कौन बताएगा? Jasmine. Okay, Jasmine, you unmute yourself and tell me where should I highlight? Which row, number? Tell me the row number. Row or column? Ma'am, 7. Ma'am, 7th. 7th column or row? Row होती है sleeping और column होता है standing. तो बताओ 7th row और column? बताओ. I am not able to find. You have to guide me. Ma'am, 7th row or 7th column? Ma'am, column. Column. Okay. Ma'am, column. 1 2 Ma'am, 3 7th 4. column. हाँ तो वही कर रही हूँ ना. Ma'am, 1 2 3 4 5 6. वो तो मुझे समझ आ गया, दिखाई तो मुझे दे गया, बट यू हैव टू गाइड मी इन द स्पीकिंग. आपकी स्पीकिंग सही होनी चाहिए. आई जस्ट टोल्ड यू रो मतलब स्लीपिंग एंड कॉलम मतलब स्टैंडिंग, एंड यू आर टेलिंग मी 7th कॉलम. तो 7th कॉलम तो ये हो गया ना बेटा, बट यहाँ तो नहीं है. So what should I start? Guide me properly. Is it 7th row or 7th column? Ma'am, 7th row. Yes, now you are correct. 7th row. Yes, here it is. Heroism. Okay. Now who will guide me with the next? Sorry, ये design थोड़ा गलत हो गया. Okay. So who will guide me with the next one? Sachi. Okay, Sachi. Tell me which row, which column?
मुझे मिल तो गया है, बट आई एम वेटिंग फॉर योर इंस्ट्रक्शन. हरी अप. Sorry, your voice is not coming, Sachi. Wait. Yes, Saksham Goyal. पहले गिन के रखो ना. Be ready with the answer. Line. Sixth Ma'am, in sixth line. लाइन. कौन सी लाइन कौन सी होती है? लाइन तो स्लीपिंग भी होती है और स्टैंडिंग भी होती है. मुझे रो या कॉलम बताओ. रो है या कॉलम? सिक्स्थ. Ma'am, row. रॉन्ग. कॉलम. मैंने अभी बताया कॉलम स्टैंडिंग होता है और रो स्लीपिंग. राइट? तो कौन सा हुआ? सिक्स्थ. कॉलम हुआ ना? Column. हाँ, तो ये BOLD बोल्ड. सिक्स्थ कॉलम. ओके. नाउ हु विल टेल? कनिका. राइट कनिका. वेट कनिका, आप रहने दो. हम किसी और को टर्न देते हैं. आपसे कोई और क्वेश्चन पूछेंगे. यस, शानवीर, यू टेल अस. Unmute yourself, Shanbir. Which column? Which column? Shanbir, which column? बातें मत करो शानवीर. Sorry, you lost the chance because you're talking. Sorry. You lost the chance because you're talking. Okay, Shashank. Just you tell Shashank. शशांक का नहीं ठीक आ रहा. निखिल खेराना, you tell. मैम ऑन द लास्ट लाइन. मुझे लाइन नहीं समझ आती. लाइन तो स्लीपिंग भी होती है, स्टैंडिंग. वर्टिकली. तो वर्टिकली को क्या कहते हैं? कॉलम. क्या कहते हैं? कॉलन. कॉलम. कॉलन नहीं, कॉलम. कॉलम. कॉलन. हाँ. कॉलम. यस. वेट. Ma'am, please click on the Shashank Singh and connect his audio. Okay, fine. But I'm not getting the option to connect his audio. It's his only who has to. I don't have the. I am trying, but it's like make host, putting waiting room. No. Shashank is not getting that. I am not able to, dear. Ma'am, you first put him waiting room and admit him back so that he can only Okay. connect to his audio. Okay, fine. I'm going to put. Thank you. Okay, please mute yourself, those who have unmuted. Otherwise, I have to take the chance. So this is the warm-up we have done. Let's. I hope you all have done in your books. Right? So now. Now we are going to start with the reading of this chapter. Okay. So here we go. Yes, thank you. Very nice. Nancy, nice. Chaliye. So this chapter name is Jhalkari. Kya naam hai is chapter ka? Jhalkari. Jhalkari was a girl, name of a girl. She was with Rani of Jhansi. Rani of Jhansi kaun thi? Lakshmi Bai. Right? Unki companion thi. Companion means अब मैसेजेस बंद कर दीजिए. चैट विंडो बिल्कुल नहीं आपको यूज करेगा. ठीक है? ओके. सो रानी लक्ष्मी बाई was queen of Jhansi.
बहुत बहादुर थी रानी लक्ष्मीबाई. Does somebody know that in which battle she fought bravely and she got so much of name and fame? Even the Britishers were scared of her name and they really spoke good of the bravery of Rani Jhansi. किसी को पता है वो बैटल कौन सी थी? Raise your hands, I'm watching. Tushar Arora has raised hand. Okay, Tushar, कौन सी बैटल थी? Unmute yourself and tell. मैम मैंने पिछली बार आपको बताना था कि कौन सा था, इसलिए मैंने पिछली बार का हैंड रेस करा हुआ था. अब पता है आपको? चलो म्यूट कर लो. मैम ठीक है, फिर कोई बात नहीं, म्यूट कर लो आप. किसी को पता है which battle did she fought? Did she fight? Anybody knows? Jagrit knows. Jagrit, पता है? Raise your hand if you know. नहीं पता. Okay. रिवोल्ट ऑफ 1857. 1857 1857 की क्रांति के बारे में कभी सुना है? जागृत किससे बातें कर रहे हो? आई एम गोइंग टू पुट यू इन द वेटिंग रूम. बातें कर लो. 1857 की क्रांति के बारे में सुना है कभी? किसी से, किसी के भी मुंह से? 1857, the first revolt of freedom that India fought against the British. सबसे पहली लड़ाई अगर सक्सेसफुल हो जाती तो हमें 1857 में ही फ्रीडम मिल जाती. राइट पूरे देश ने जगह जगह से अपने अपने तरीके से इसको लड़ा था सिर्फ, और बहुत अच्छी प्लानिंग थी, बहुत अच्छी प्लानिंग. लेकिन फिर भी हम सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? बिकॉज वी वर डिवाइडेड, वी वर नॉट वन, वी वर नॉट ऑल टुगेदर able to help each other because of the distances and lack of amenities. हमारे पास उतने resources नहीं थे, right? और British were more powerful and they were united and they also हम बिल्कुल rules को follow करते थे, but the British were really rude and they were bad people, so they ruled us with hook or crook every way, right? But we like otherwise the revolt of 1857 was a great planned battle which was fought against British and it was the very first battle. और उस बैटल में रानी ऑफ झांसी, कौन थी रानी ऑफ झांसी? लक्ष्मी बाई. she was, her king was no more, like, and she fought. रानियां नहीं लड़ती थी उस समय, राजा लड़ते थे. लेकिन वो एक रानी होकर उसने अपने कंट्री की, अपनी टेरिटरी, अपने राज्य झांसी की प्रोटेक्शन की. इसलिए और इतनी बहादुरी से की कि आज भी हम उन्हें बहुत अच्छे से बहादुरी का प्रतीक मानते हुए, द सिंबल ऑफ ब्रेवरी मानते हुए रानी लक्ष्मीबाई को याद आज भी किया जाता है. एंड हर वर्क इज रिटन इन द हिस्ट्री इन द गोल्डन लेटर्स, राइट? अब हम रानी लक्ष्मीबाई की कहानी तो नहीं पढ़ रहे प्रॉपर्ली, हम झलकारी की कहानी. इसमें फोकस किस पर है? द गर्ल झलकारी, जो रानी की कंपेनियन थी. कंपेनियन कौन होता है? Friend, the one who is always with you wherever you go, who is always there to help you and support you in your goods and bad. Okay, so वो होता है friend, a companion. So आज हम ये चैप्टर शुरू करने लगे हैं. Make sure everybody has a book and a pencil in hand. I will be underlining, मैं underline करूंगी वर्ड्स को, आप प्लीज सर्कल करेंगे. जो वर्ड्स मैं underline करूंगी वो आप सर्कल करेंगे, ठीक है? और जो मैं वैसे अगर सिर्फ समझाने के लिए अंडरलाइन कर रही हूँ वो आप अंडरलाइन ही रख सकते हैं, बिकॉज देट वुड बी द फैक्चुअल आंसर्स. अच्छा, जिस पे मैं टिक करूँ आप उसको सर्कल कर लेना और जिस पे अंडरलाइन करूँ उसको अंडरलाइन कर लेना. सबको समझ आ गया? The words which I tick you have to circle and the words which I underline you have to underline. Okay, raise your hand if we all are ready to start. बेटा शाइनी, वेनिका, हिमांशी, दक्ष, वीडियोस ऑफ है आप सबकी. शशांक, हाँ, everybody should be ready. Yes, साची किससे बात कर रही हूँ? मम्मा से? मम्मा से बात कर रही हो? Whom you are talking to? Yes, किससे बात कर रही हो? आपकी आवाज नहीं आ रही. चलिए, okay, fine. Don't talk, बेटा. Let's start.
yes, so let's start reading. आज हम सब रीडिंग करेंगे. Lakshmi the Rani of Jhansi, born on November 19, 1828. ये birth date दी हुई है. And she died on 17-18 June 1858. यहाँ दो dates इसलिए दी हुई हैं. Maybe it's not very much accuracy, नहीं होगी उनके पास, इसलिए अंदाजा दिया हुआ है कि या तो 17 को या 18 को she died. कब? 1858, 1857 की क्रांति के बाद, right? उसी के दौरान. कौन थी वो? Was an Indian queen and a warrior. Warrior कौन होता है? The one who fights in the battle, right? क्षत्रिय, right? Circle this word, warrior. ठीक है, वो एक क्वीन थी और क्षत्राणी थी, लड़ाई में निपुण थी, बैटल उन्हें लड़नी आती थी, युद्ध उन्हें करने आते थे, right? Now read the story of Jhalkari, who was Rani's trusted companion. Trusted companion. Trusted companion matlab the one who is a companion. Companion is a person who is with you in your goods and bad. So please circle companion. Trusted matlab the one who you can trust always. Vishwas layak. Okay, let's start with the story about Jhalkari. Jhalkari was an orphan. Orphan matlab the one who is parentless, जिसके मम्मी पापा ना हो. ठीक है, so circle the word orphan. Jhalkari was an orphan. She was bold and fearless little girl. कैसी थी? Bold and fearless. What kind of girl was Jhalkari? Jhalkari was a bold and fearless little girl who loved to climb trees and swim in the river and play the games that people call boys games. So उसको क्या क्या करना पसंद था? पेड़ों पे चढ़ना, रिवर में तैरना और लड़कों वाले गेम खेलना. वो गुड्डे गुड़ियों से नहीं खेलती थी, तलवारबाजी करती थी, मुक्केबाजी करती थी, गिल्ली डंडा खेलती थी. ऐसे जितने भी लड़कों के गेम्स थे ना, उसको वो पसंद थे. ठीक है. The villagers liked her for she was a willing worker and could stand long hours of strain and hardship. She was a willing worker and could stand long hours of strain and hardship. इसका क्या मतलब है? Villagers liked her मतलब सारे villagers उसको पसंद करते थे. For यहाँ पे preposition नहीं है, for यहाँ पे conjunction है, दो sentences को जोड़ रहा है और because की sense में है. क्यों like करते थे? क्योंकि वो willing worker थी. Willing worker मतलब who is ready to work. कभी मना नहीं करती थी. She was always ready. कोई भी काम होता था हिम्मत का, वो उसको करती थी. And could stand long hours. हम यहाँ stand का मतलब खड़े होना नहीं है सिर्फ. Stand long hours मतलब वो घंटों उस मुसीबत का सामना, चाहे वो कितना ही डिफिकल्ट टास्क हो, उसमें लगन के साथ लगी रहती थी, काम फिनिश करती थी. ठीक है. और चाहे वो काम बहुत ही मुश्किल हो, she used to stand long hours. घंटों उसके प्रति मेहनत करती रहती थी. स्ट्रेन एंड हार्डशिप मतलब सफरिंग, चाहे कितना ही डिफिकल्टी हो. समझ आ रही है आरुष? ओके, ठीक है. दे ऑफन स्पोक ऑफ द टाइम. अब ये दे किसके लिए लगा है? विलेजर्स के लिए. अब हम आगे पढ़ते हैं. I hope you all have done the words on this page. Companion, orphan, warrior, strain, hardship. एक बार मुझे कोई ये सारे वर्ड्स पढ़ के दिखा दे. Who will read it for me? Navya will read it for me. Yes, Navya, read it for me. All the words we have circled. Navya. क्या हुआ? Unmute yourself. हाँ, read for us. What is this word? मैम warrior. Warrior. Warrior नहीं, war. Lips को ऐसे round करो. Warrior. बोलो. Warrior. हाँ, warrior. और next. Companion.
Fine. Next. orphan, Orphan नहीं, often. बोलो often. र को थोड़ा ट्विस्ट करके. orphan, हाँ, very good. Often. Okay. Next. bold and fearless, That is just the word. Okay, fine. Next. ये देखो मैंने सर्कल जो किए हैं सिर्फ वो पढ़ो. strain, hardship, Strain. Strain. र सुनाई देगा. Strain. बोलो. strain, हाँ, perfect. Unmute yourself. Let's move to the next page. Okay. Next page. Okay, let's start. They often spoke when she had fought a leopard single-handedly in the jungle and killed it with nothing more than a sturdy stick. They often spoke. Villagers. They किसके लिए है? Villagers के लिए. Villagers बात किया करते थे normally. बहुत बहुत बात करते थे उसके बारे में. क्या बात करते थे? She had fought a leopard. कि उसने एक leopard को के साथ लड़ाई की single-handedly. Single-handedly मतलब अकेले, without any help, without any other person's help. अकेले ही, single-handedly in the jungle and killed it with nothing more than a sturdy stick. Sturdy मतलब a thick stick. उसके पास सिर्फ एक मोटा डंडा था और सिर्फ उस मोटे डंडे और अकेली बहादुरी से उसने इस लेपर्ड को मार दिया, किल कर दिया. और विलेजर्स इसकी इस बहादुरी की खूब बातें किया करते थे. राइट. आफ्टर दैट दे निकनेम्ड हर झलकारी द टाइग्रेस. और उसको क्या नाम दिया? झलकारी द टाइग्रेस. क्या पुकारते थे झलकारी को? झलकारी द टाइग्रेस. क्यों पुकारते थे? Why was she called tigress? Because she fought and killed the leopard single-handedly. अगर कोई आपसे पूछ ले why was झलकारी called, was given a nickname झलकारी द टाइग्रेस, कि झलकारी का ये नाम कैसे पड़ा, है ना? तो आप कह सकते हो she was called the tigress because she killed the leopard single-handedly, right? She killed the leopard single-handedly. Nickname मतलब आपके भी तो निकनेम होते हैं ना, घर में प्यार से कोई कुछ बुलाता है. और ये निकनेम कैसे पड़ते हैं? कभी तो हमारी हैबिट्स के कारण पड़ जाते हैं. कुछ बच्चे जो रोते रहते हैं उनको कई बार प्यार से मम्मी पापा बुलाते हैं, रोंदड़ू बुलाते हैं ना, है ना? और जो बहुत शरारती होते हैं तो उसको शैतान, नटखट कुछ भी बुलाते हैं. ओए मेरा नटखट इधर आ, है ना? ऐसे ऐसे कुछ भी बुलाते हैं ना, या तो उनकी आदतों की वजह से या फिर वैसे ही प्यार से नाम रख देते हैं. सो दैट्स कॉल्ड निकनेम. तो झलकारी का प्यार से सबने नाम क्या रखा? झलकारी द टाइग्रेस. और क्यों रखा? बिकॉज शी फॉट विद द लेपर्ड एंड किल्ड इट सिंगल हैंडेडली. अकेले ही उसको मार गिराया था. ठीक है. ओके, आगे बढ़ते हैं. मैं देख रही हूँ कि सब पढ़ रहे हैं लेकिन अभी कुछ बच्चों के वीडियोस अभी भी ऑफ है. शानवीर, हिमांशी, वेनिका, दक्ष, आई कैन सी देम. फिर वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे मुझे कैसे पता चलेगा, है ना? कीप योर वीडियोस ऑन. तुषार नींद आ रही है. अभी हम तुषार से क्वेश्चन पूछेंगे ताकि उसकी नींद भाग जाए. ठीक है. ओके. व्हेन झलकारी, तुषार ध्यान से सुनना. आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन. नींद आ रही है ना? हाँ, ध्यान से सुनना. When Jhalkari grew up, जब झलकारी बड़ी हो गई, she was married to a soldier in the army of Rani Lakshmi Bai and went away to live with him in Jhansi. So, where she went in to Jhansi. कौन गया? तुषार बताएगा हमको. तुषार, who went to live in Jhansi? Unmute yourself and tell us. Tushar Arora.
Yes, speak बेटा. आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही मुझको? साची, आपको आ रही है तुषार की आवाज? नहीं ना? तुषार, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. हाँ, अब आ रही है, बोलो. फिर से पॉज हो गया. मैम तुषार, योर नेटवर्क इज नॉट गुड. मैम हाँ, बोलो बोलो, मैं सुन रही हूँ. तुषार, योर नेटवर्क इज नॉट गुड बेटा. मैम अभी आवाज Tushar, your network is not good. So I will just give you a chance later on. I'll just send you a message, Tushar. Your network is not fine. साची ने कौन सी मूवी देखी है? अच्छा, झांसी की रानी की. ओके ओके, सो आगे पढ़ते हैं. झलकारी. कौन वहां रहने गया झांसी में? झलकारी. क्यों गया? Why she went to झांसी? Because she was married to a soldier. एक सिपाही के साथ उसकी शादी हुई. और सिपाही कहाँ काम करता था? रानी झांसी के पास. राइट, झांसी में काम करता था. तो वो वहां अपने हस्बैंड के साथ मूव कर गई. और दैट वाज हाउ रानी चांस टू सी हर वन डे. इसी तरह रानी ने उसे एक दिन देखा. रानी ने ऑब्जर्व किया, क्योंकि वो झांसी में रहती थी, तो रानी भी झांसी की थी. तो एक बार उसने देखा. एंड जैसे देखा, रानी ने क्या ऑर्डर पास किया? शी शैल बी माई कंपेनियन. ये मेरी साथी बनेगी. द रानी ऑर्डर्ड. रानी ने ऑर्डर दिया द झलकारी वुड बिकम हर कंपेनियन. व्हाई? अब यहाँ फिर फॉर क्या है? बिकॉज की सेंस में लगा है. क्यों? क्योंकि उन्हें पसंद आ गया. क्या पसंद आ गया? She liked the girl's frank and fearless attitude. She liked the girl's frank मतलब friendly, fearless मतलब courageous, attitude मतलब सोचने और चीजों को डील करने का तरीका. ठीक है, राइट. सो रानी को उसकी ये सारी क्वालिटीज बहुत पसंद आई. रानी को ये सारी क्वालिटीज बहुत पसंद आई. एंड उसने कहा दैट शी विल बिकम माय कंपेनियन, कि ये मेरी कंपेनियन बनेगी. राइट, ओके, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी टाइम. ये ब्लैक पैच आ रहा होगा. हाँ, ओके. सो ऑर्डर पास हो गया. अब वो उसकी साथी बन गई. झलकारी हमेशा रानी के साथ साथ रहने लगी. राइट, सो दे बिकेम गुड फ्रेंड्स. दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई. एंड एवरी डे द टू यंग विमेन, इसको क्या पढ़ते हैं? विमेन. जब ए लिखा हो तो पढ़ते हैं वुमन. क्या पढ़ते हैं? वुमन. और जब ई लिखा हो तो क्या पढ़ते हैं? क्योंकि प्लूरल होता है ना वुमन का. विमेन. क्या पढ़ते हैं? विमेन. सो every day the two young women went out riding together. इकट्ठे घुड़सवारी करती थी. They fenced. Fenced मतलब तलवारबाजी करना, प्रैक्टिस करना. ठीक है, they fenced, they wrestled, मुक्केबाजी करना, and practice shooting with revolver and gun. रिवॉल्वर और गन के साथ शूटिंग की प्रैक्टिस भी करती थी. सो अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट ऑल थिंग्स रानी एंड झलकारी यूज्ड टू डू टुगेदर, तो हम क्या क्या कहेंगे? दे यूज्ड टू राइड टुगेदर, दे यूज्ड टू फेंस टुगेदर, दे यूज्ड टू रेसल टुगेदर, दे यूज्ड टू प्रैक्टिस शूटिंग टुगेदर. है ना? तो हम ये 4 पॉइंट्स दे सकते हैं अगर कोई हमसे पूछता है कि वो दोनों क्या क्या करती थी इकट्ठे. ठीक है, ओके. सो दोज वर द ट्रबल टाइम्स. ट्रबल टाइम मतलब मुश्किल की घड़ियां. राइट, डिफिकल्ट सिचुएशंस. एंड एवरीवेयर देयर वर रूमर्स ऑफ वॉर. रूमर्स मतलब अफवाहें. द
talks that spread around in the area, जो बातें इधर उधर सारी फैलती हैं, तो किस तरह की र्यूमर्स, किस तरह की बातें फैली हुई थी उस एरिया में, सारे कंट्री में, युद्ध की, राइट, युद्ध की बातें चल रही थी। क्यों चल रही थी? बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज हमारे राज्य में आ गए थे, हमारे देश में व्यापार करने आए थे, और यहाँ पे उन्होंने देखा कि लोगों को गलत तरीके से उन्होंने डील करना शुरू किया अपने फायदे के लिए। बहुत मतलब कई लोगों को लालच दिया, लाइक उन्हें पता था कि यहाँ इंडिया में अभी उतनी प्रोग्रेस नहीं है, तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया और दे स्टार्टेड रूलिंग अस, हमारे ऊपर धीरे धीरे कब्जा करना और रूल करना शुरू कर दिया। आए तो एक ट्रेड करने के लिए थे, व्यापार करने के लिए थे, ठीक है, ट्रेडिंग। सो उस द ब्रिटिश, इसीलिए वो वॉर की सिचुएशन हो रही थी कि आपके घर में कोई घुस जाए, आए तो मेहमान बनकर लेकिन राजा बन के बैठ जाए, तो क्या आप उसको बर्दाश्त करोगे? एक दिन देखोगे, कोशिश करोगे ना उसको बाहर भगाने की, उस गेस्ट को। अगर कोई घर में आए गेस्ट की तरह, लेकिन 7-8 दिन लगाना शुरू बैठ जाए और ऐसे बिहेव करे जैसे वही घर का मालिक हो, तो कैसा सब घर के सारे मेंबर्स कैसा फील करेंगे? दे विल फील बैड ना, कि घर तो हमारा है और राज ये हम पे कर रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है, दे शुड बी मूव्ड बैक। आप कोशिश करोगे कि वो उस गेस्ट को जल्दी से जल्दी अपने घर से विदा करो। इसी तरह अंग्रेज भी एक गेस्ट की तरह हमारे यहाँ आए थे, लेकिन हम पे रूल करने लग गए, राइट। द ब्रिटिश हैड एक्सपेंडेड मतलब फैलाना, उन्होंने अपना राज्य, अपना कंट्रोल फैलाना शुरू कर दिया। देयर टेरिटरी मतलब द बाउंड्री, द एरिया ऑफ लैंड, तो बहुत उन्होंने लाइक दे कंट्रोल्ड, दे स्टार्टेड, राज्य बढ़ाने शुरू कर दिए, इंडिया के ज्यादा हिस्से पर उनका कंट्रोल शुरू हो गया था। सो दे हैड ट्रेड, और आए कैसे थे? दे हैड अ ट्रेडिंग कंपनी। कौन सी कंपनी का नाम क्या था? द ईस्ट इंडिया कंपनी। व्हाट वाज द नेम ऑफ द कंपनी व्हेन दे ब्रिटिश एंटर्ड इंडिया? द नेम ऑफ द कंपनी वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी, and its officers ruled the people very harshly, बहुत रूडली बिहेव करते थे हमारे यहाँ के लोगों से। और 1857 में, कब? 1857 में पूरे देश भर में जगह जगह पे लड़ाई शुरू हो गई, फाइटिंग ब्रोक आउट ऑल ओवर द कंट्री, एवरीवेयर द पीपल रोज इन रिबेलियन मतलब फाइट करने के लिए, सब भगाने के लिए अंग्रेजों को एकजुट हो गए, सब खड़े हो गए। रोज इन रिबेलियन मतलब दे वर रेडी टू फाइट, ठीक है, किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द फॉरेन रूलर्स। हु वर द फॉरेन रूलर्स? द ब्रिटिशर्स। फॉरेन मतलब जो हमारे देश के ना हो, वो फॉरेन है, ठीक है। सो द ब्रिटिश फॉट बैक एंड thousands of people were killed on both sides। बहुत मतलब ये लड़ाई ना इतनी अच्छी लड़ाई हुई थी, अगर हम थोड़े से और यूनाइटेड होते और थोड़ी सी हमारी और रिसोर्सेज होते, बेटर हमारे पास फैसिलिटीज या आर्मामेंट होते, तो हम 1857 में ही आजादी पा लेते। हमें आजादी 1947 में मिली, 200 सालों बाद। 200 साल, देखो कितना लंबा टाइम है। जबकि 1850 हम इतने पावरफुल थे, लेकिन क्योंकि बटे हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट राज्यों में थे, एकजुट नहीं थे, और हमारे पास उतनी प्रोग्रेस और हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी, जिसके कारण कई रीजंस रहे इस 1857 रिवोल्ट के अनसक्सेसफुल होने के। जबकि ये बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ, और बहुत हमारे यहाँ बहादुर लोगों की कमी नहीं थी, देश पर जान न्यौछावर करने वालों की कमी नहीं थी, लेकिन उतनी ही गरीबी और लैक ऑफ रिसोर्सेज के कारण कई बार कुछ लोग छोटे छोटे फायदों के लिए बड़े बड़े नुकसान कर जाते थे। जैसे रामायण में भी आपने देखा है ना, हम कहते हैं कि विभीषण ने रावण के सारे राज राम जी को बताए, तो इसलिए राम जी के लिए और आसान हो गया रावण को मारना। अगर वो विभीषण नहीं होते तो राम जी के लिए और टफ होता उस रावण को मारना, है ना। तो हमारे
रावण के अपने ही लोगों ने धोखा दिया ना, तो इसलिए विभीषण का नाम कभी पॉजिटिव वे में नहीं लिया जाता, जबकि वैसे उसने अच्छा किया। अगर हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग देखें तो विभीषण ने बिल्कुल राइट पाथ चूज किया, क्योंकि राम जी वॉज ऑन द ट्रुथ साइड, और हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। तो विभीषण ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी जब भी हम विभीषण बोलते हैं किसी को, तो दैट मीन्स हम उसको बैड क्वालिटी के लिए याद किया जाता है। क्या बैड क्वालिटी? कि उसने अपने ही घर में का भेद दूसरे को दिया और अपने घर की बर्बादी का कारण बना। ये एक मुहावरा है ना हिंदी में, घर का भेदी लंका ढाए। तो घर का भेदी लंका ढाए किसके लिए यूज होता है? विभीषण के लिए। क्यों यूज होता है? जबकि विभीषण ने राइट काम किया। ऑब्वियसली सच्चाई का साथ देना चाहिए, सही का साथ देना चाहिए। रावण गलत था, लेकिन फिर भी विभीषण को क्योंकि उसने अपने ही घर के भेद बताए थे, तो इस बैड सेंस में भी याद किया जाता है हमेशा। कोई भी अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखता है ना। सो दैट वाज सो इसी तरह हमारे यहाँ भी कई विभीषण भी थे, अपने ही राज बता देते थे, है ना, छोटे छोटे फायदों के लिए। कई बार हम लोग छोटे छोटे फायदों के कारण को देख लेते हैं, अपने फायदे कर जाते हैं, लेकिन बड़े नुकसान का अंदाजा नहीं लगा पाते, है ना। तो हमें हर काम बिल्कुल सोच समझ के करना चाहिए। आगे की कहानी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक बार फटाफट एक बच्चा मुझे कौन पढ़ के बताएगा ये सर्कल वर्ड्स जो अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सिर्फ वो वाले। ओके, कनिका पढ़ के बताएगी। कनिका, जिसको मैं पॉइंट करूं पहले वो पढ़ना, ठीक है। अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ, सो ये वाला पढ़ो, FENCED। Fenced. फेंसेड नहीं, फेंस्ड। क्या बोलोगे? फेंस्ड बोलो, फेंस्ड। Fenced. हाँ, नेक्स्ट पढ़ो। Wrestled. वेसल्ड नहीं, wrestled, W is silent, okay, wrestled बोलो, everybody repeat, wrestled, wrestled, Wrestled. okay, next word, Revolver. correct, revolver। चलो हम किसी और को चांस देते हैं। अब कनिका म्यूट योरसेल्फ। अब हम किसको चांस दें? यहाँ तो मुझे नैन्सी को दे